ला ले सकते हैं क्या? देखो मॉड्यूल। Okay, students, in today's class we will continue solving questions from biological classification, page number 12. Page number 12, which among the following are smallest cells? Smallest cell किसको बोलते हैं? Smallest cell कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नोट्स में मेंटेन करिए। माइकोप्लाज्मा आर नोन एज smallest cell. They are not having cell wall. No cell wall. And yesterday we have seen mycoplasma are also known as jokers of microbiology, क्योंकि सेल वॉल नहीं है इनके पास. There is no cell wall in mycoplasma. Sticky character of bacteria. Stickiness in bacteria is due to ये सेकंड क्वेश्चन. बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं. दैट मीन दे कैन अटैच टू द सरफेस. wherever bacteria they are present, they remain attached to the object. So how bacteria get stickiness? Stickiness is due to glycocalyx. Glycocalyx का मतलब क्या है? When bacteria, we study bacteria, first bacteria is having 3 jackets. बैक्टीरिया के ऊपर 3 जैकेट हैं. फर्स्ट जैकेट इज कैप्सूल, सेकेंड जैकेट is cell wall. Third jacket of the bacteria are known as plasma membrane. Bacteria is having how many covers around itself? Bacteria के 3 covers हैं. आउटर मोस्ट कैप्सूल है, फिर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. कैप्सूल प्रोवाइड स्टिकीनेस. कैप्सूल प्रोवाइड स्टिकीनेस. कैप्सूल का और एक नाम है ग्लाइकोकैलिक्स. Glycocalyx, another name of capsule is glycocalyx. It provides stickiness to the bacteria. Next है, in bacteria when DNA replicate, in bacteria DNA replication occur. In bacteria DNA replicates. What is mean by replication? Making double copy. Making, suppose a bacteria is having 1 DNA. अगर बैक्टीरिया में 1 DNA है, अगर ये डबल हो जाएंगे, 1 DNA become 2 DNA. This is called replication. इसी को replication बोलते हैं, DNA replication. So when DNA replication occur in bacteria, DNA replication occur in bacteria just prior to binary fission. Just prior to binary fission. Bacteria divide by what method? Binary fission. Just prior to binary fission. बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिशन होता है, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी फिशन? डीएनए डबल्स एंड देन 1 parent body divide become 2 parental cells, 2 daughter cells. 1 bacteria divides become 2. This is called binary fission. और ये बाइनरी फिशन कब हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन कब हुआ? जस्ट प्रायर टू binary fission. So generally this question is important because हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है?
डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन यस फेज बोलते हैं, ऑकर इन यस फेज, ठीक है, यस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। बट बैक्टीरिया में यस फेज नहीं है। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा है? प्रायर टू बाइनरी फिशन। इन ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर इन यस फेज। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिशन। What is the powerhouse of the cell? Everyone knows power of the cell is mitochondria, but bacteria is not having powerhouse of the cell. In bacteria, mitochondria is absent. Mitochondria is absent. बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. So the energy production, energy, what is the form of energy in bacteria? ATP. What is the form of energy in bacteria? ATP. In bacteria, mitochondria is absent, so the energy ATP produced at mesosomes. मीसोजोम मतलब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स हैं. व्हाट आर द फोल्डिंग्स ऑफ बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मीसोजोम्स. मीसोजोम्स बोले. डिफाइन मीसोजोम. क्या है मीसोजोम्स? इनफोल्डिंग्स. इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होते हैं. वो फोल्डिंग्स को आप मीसोजोम्स बोलेंगे. एंड मीसोजोम्स आर द साइट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन. Okay. Do you know ciliates? What is meant by ciliates? Ciliates का मतलब है पैरामीशियम. बेस्ट एग्जांपल. Paramecium is best example of ciliate. And paramecium is having many cilia around the body of paramecium. ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही सीलिया हैं. सीलिया आर हेल्पिंग फॉर लोकोमोशन इन पैरामीशियम. एंड पैरामीशियम आर हैविंग टू न्यूक्लियस. पैरामीशियम इज नोन फॉर विच एग्जाम्पल? बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन. बाइन्यूक्लिएटेड मतलब टू न्यूक्लियस. In which group of organism each cell having two nucleus? ये दो न्यूक्लियस. Paramecium is having two nucleus. Binucleated condition. What are the producers in ocean? Producers in ocean. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरा? प्रोड्यूसर इन ओशन मतलब क्या? हु इज मेकिंग फूड इन ओशन. जैसे हम बोलते हैं ऑन अर्थ फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. लाइक दैट ओशन में फूड कौन बना रहा है? डाई एटम्स. डाई एटम्स आर द प्रोड्यूसर इन ओशन. इडिबल फंगाई के नेम बताइए. इडिबल कौन कौन से ऐसे फंगाई हैं जिनको खाया जा सकता है? इडिबल फंगाई. इडिबल फंगाई. यस. मशरूम. वेरी गुड एग्जांपल. मशरूम. मशरूम को और एक नाम दे सकते हैं हम, एगैरिकस.
mushroom. So many of you have maybe eaten this type of mushroom. ये मशरूम होते हैं, एडिबल मशरूम है. मशरूम एगैरिकस एडिबल है. और इसमें जो है मॉरल्स बोल के आते हैं, मॉरल्स, ट्रफल्स. Just like mushroom, another type is morels, truffles. They are also edible fungi. Which fungi is used for making bread and wine? Bread and wine. ब्रेड और वाइन बनाने के लिए कौन सी फंगाई यूज करते हैं? ईस्ट. ब्रेड और वाइन बनाने के लिए ईस्ट यूज करते हैं. ईस्ट का नाम बताइए, साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट. सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. नेक्स्ट, under plant kingdom chapter, let's see what are the important terms plant kingdom में. Cryptogams. Cryptogams means what? Non-flowering plants. Non-flowering plants are crypto. किसके लिए? कौन से सेक्शन के लिए? नहीं, क्वेश्चन सेक्शन मेरे को नहीं मालूम. नहीं, सेक्शन बोलो, मैं बोलता हूँ. पूछ लो. Then non-vascular plants. Non-vascular plants का मतलब क्या है? Non-vascular plant means no xylem and phloem. ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं. अगेन अलगे, अलगे, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, they are called non-vascular plants. Phanerogams किसको बोलेंगे? Phanerogams. Phanerogams means flowering plants. ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर हैं. Example is angiosperms. Angiosperms are flowering plants. Flowering plant है. Gymnosperms are flowering plants. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों फ्लावरिंग है. रिमेंबर, क्वेश्चन बन सकता है. देखिए, ब्रियोफाइट जो है, ब्रियोफाइट, ब्रियोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ब्रियोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. Amphibians because they need water. Bryophyte need water for sexual reproduction. Bryophyte sexual reproduction करने के लिए water चाहिए. That's why इनको बोलते हैं amphibians. Amphi means double. Bians means life. दो life है इनके पास. एक water में life है, on land. In water, on land. Two types of life. Amphibians of plant kingdom बोले. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? आंसर शुड बी ब्रियोफाइट. नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर नोन एज नेकेड सीडेड प्लांट? नेकेड सीडेड. नेकेड सीडेड मतलब क्या है? ओपन सीडेड प्लांट. देयर इज नो फ्रूट. Gymnosperms are not having any fruit. No fruit. Gymnosperm, no fruit. They are naked seeded plant. Naked seeded plant है ये.
And how to remember the examples of different group of algae? Algae are divided into three types. Algae are divided into three types. One is chlorophyceae. Second type is phaeophyceae. सेक्शन नहीं मालूम. अच्छा अच्छा. ये बुक में से निकालें दे. ओके, अब उन्होंने चले गए. नहीं बोले सेक्शन ही नहीं बोले उन्होंने मेरे को. नहीं बोले उन्होंने. क्या है कि नहीं, मैं मेरे को नहीं बोले बोल रहा हूँ. जी जी. यस सर. नेक्स्ट है रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी का मतलब है ना ग्रीन अलगे हैं. फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगे हैं. रोडोफाइसी दे आर रेड अलगे. रोडोफाइसी आर रेड अलगे. रोडोफाइसी आर रेड अलगे. ओके. तो क्लोरोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं, क्लोरोफाइसी के जो एग्जाम्पल हैं उसको हम ऐसे याद रखेंगे. चल वोल टू स्पाइरो चारा. क्या है? ट्रिक है ये. चल वोल टू स्पाइरो चारा मतलब क्या है? चल से बनेगा क्लैमिडोमोनास. क्लैमिडोमोनास. चल क्लैमिडोमोनास. वॉल से बनेगा वॉलवॉक्स. यूलोथ्रिक्स. स्पाइरो से बनेगा स्पाइरोगेरा. और चारा, चारा या क्यारा बोलो, ये ग्रीन अलगे होते हैं. वाटर में ग्रीन कलर का जो अलगे दिखते हैं वो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं. फियोफाइसी आर ब्राउन अलगे. ब्राउन अलगे के, ब्राउन अलगे के कैसे याद रखना है? DEFLS. DEFLS एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक. डी से बनेगा डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस. ब्राउन अलगे हैं ये. एलएस लेमिनेरिया. यस फॉर सरगैसम. यस फॉर सरगैसम. यस, ब्राउन अलगे के याद रखने का बेस्ट मेथड है DEFLS. रोडोफाइसी के अगर आपको एग्जांपल याद रखना है, बेस्ट मेथड है P²G². P² मतलब P के दो हैं, G के दो हैं. P फॉर पॉलीसाइफोनिया. ये सारे नेम है अलगे के, याद रखना होगा. पॉलीसाइफोनिया. वन मोर पीस पोरफायरा. ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा. और G² से बनेगा जल्लीडियम. और एक है ग्रासिलेरिया. जल्लीडियम, ग्रासिलेरिया, दे आर बिलोंगिंग टू रोडोफाइसी मेंबर्स. रोडोफाइसी मेंबर्स. जल्लीडियम, ग्रासिलेरिया. याद रखो, जल्लीडियम ग्रासिलेरिया से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं ये अलगे से, जल्लीडियम ग्रासिलेरिया. विच केमिकल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जल्लीडियम एंड ग्रासिलेरिया? अगार अगार. अगार अगार बोल के एक केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं जल्लीडियम और ग्रासिलेरिया से. और ये अगार अगार क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट है. इट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट. इट कैन कन्वर्ट एनी लिक्विड into solid. It can convert any liquid into solid. लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है. ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है. सॉलिडिफाइंग एजेंट है.
कौन से अलगे यूनिसेलुलर हैं, कौन से अलगे फिलामेंटस हैं? एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट यूसी सीवी, एफ फॉर फिलामेंटस। कौन कौन से अलगे हैं जो फिलामेंट के तरह होते हैं? फिलामेंट मींस लॉन्ग थ्रेड। फिलामेंटस अलगे, एफ फॉर फिलामेंटस अलगे दो हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा आर फिलामेंटस अलगे। एंड यूसी, यू फॉर यूनिसेलुलर अलगे। कौन सा यूनिसेलुलर अलगे है? क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास मतलब बस एक ही सेल होता है क्लैमिडोमोनास के पास, यूनिसेलुलर सिंगल सेल। एंड वन मोर, सी फॉर कॉलोनियल अलगे। कॉलोनी में पाए जाने वाला अलगे कौन सा है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनियल अलगे हैं। ठीक है। एंड व्हाट आर द जाइंट अलगे? आप रिवर, पॉन्ड, लेक में ग्रीन कलर देखे होंगे, वही। यस सर। ठीक है, बुक ले लेके आओ आपके क्रैश कोर्स की, मैं बता देता हूँ। सो फर्स्ट यूसीसीवी कॉलोनियल अलगे वॉल्वॉक्स है, कॉलोनियल अलगे वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट है देखिए, फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर्स। फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में जा रहे हैं या स्पेस शिप में जा रहे हैं, उनके लिए फूड क्या होता है? नॉर्मल फूड तो नहीं खा सकते वो, मुश्किल है स्पेस में। फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, दीज आर फूड फॉर स्पेस। जो स्पेस में जा रहे हैं उनके लिए फूड है ये क्लोरेला, स्पाइरुलिना। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोगैमेट्स, अनआइसोगैमेट्स, ऊगैमेट्स या ऊगैमस भी बोल सकते हैं। देयर आर थ्री कंडीशंस, आइसोगैमेट्स, अनआइसोगैमेट्स, ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब है व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर। जब मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिख रहे हैं तो आइसोगैमेट्स। अगर सपोज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लुक डिफरेंट, अनआइसोगैमेट्स बोले। इफ मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये फ्लैजेला है। इफ मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल, female gamete is larger but not motile, not having any flagella. This condition is oogamous condition. oogamous बोले उसको। आइसोगैमस मीन्स इफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर हैं, मेल भी और फीमेल गैमेट में दोनों सिमिलर हैं, तो आइसोगैमेट्स बोले। अनआइसोगैमेट्स मतलब डिसिमिलर हैं इन साइज। If male and female gametes are dissimilar in size but both are having flagella, oogamous में मेल गैमेट को फ्लैजेला है, फीमेल गैमेट को फ्लैजेला नहीं है, oogamous बोले इसको।
ठीक है। अब आइसोगैमेट्स कहां पर बनते हैं? आइसोगैमेट इज प्रोड्यूस इन क्लैमिडोमोनास. Chlamydomonas produces isogametes. Unisogametes is produced by Unisogamete is produced by यूडोरीना. अलगे के नाम हैं ये. आपको पूछ सकता है आइसोगैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ग्रुप ऑफ अलगे? क्लैमिडोमोनास. oogamous में मेल गैमेट स्मॉलर, फीमेल गैमेट लार्जर. दिस कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स में मिलेगा आपको oogamous कंडीशन. ये तो सारे पॉइंट थे अलगे के. अब यहां पे मैं एक ब्रियोफाइट का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ब्रियोफाइट एक ब्रियोफाइटिक प्लांट है. दिस इज अ ब्रियोफाइटिक प्लांट. So in case of bryophytic plant, you find root-like structure. What are rhizoids? Rhizoids क्या है? Root-like structures हैं bryophyte में. Root-like structures are called rhizoids. And this one is main axis. Main axis. Okay. And this whole part rhizoid से लेके ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ये पूरा पार्ट होता है गैमेटोफाइट. व्हाट इज मीन बाय गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट. जिससे गैमेट बन रहा है गैमेटोफाइट. एंड द अपर पार्ट जो है स्पोरोफाइट होगा. Upper part is a sporophyte. Sporophyte is having 3 parts. ये है सीटा, ये है कैप्सूल. सीटा कैप्सूल. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द ब्रियोफाइट. ये एक ब्रियोफाइट है. ब्रियोफाइटिक प्लांट में क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. दे आर कॉल्ड राइजोइड्स. राइजोइड्स रूट की तरह स्ट्रक्चर है. रूट नहीं है, रूट के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं. एंड राइजोइड्स आर 2 टाइप्स. यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. 2 टाइप्स ऑफ राइजोइड्स. यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. कैप्सूल के अंदर क्या है? कैप्सूल कंटेन स्पोर्स. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोइड्स? राइजोइड्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. एंड राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर, में भी मल्टीसेलुलर. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं. इफ प्लांट्स आर नॉट हैविंग सीड, अगर प्लांट के पास सीड नहीं है तो क्या बनाते हैं प्लांट? स्पोर्स. पाउडर लाइक स्ट्रक्चर स्पोर्स हैं. ओके. एंड ब्रियोफाइट दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है ये. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रियोफाइट. ठीक है. देयर इज ए ब्रियोफाइट. एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा. पीट मॉस. देयर इज ए ब्रियोफाइट कॉल्ड पीट मॉस. पीट मॉस किसको बोलते हैं? स्फैग्नम. एक ब्रियोफाइट है स्फैग्नम बोल के. स्फैग्नम लिख लो. स्फैग्नम. इट इज कॉमनली कॉल्ड पीट मॉस. Sphagnum is commonly called peat moss.
and this peat moss used as packaging material. Packaging material. In older time कोई भी चीज को पैकिंग करने के लिए यूज करते थे ये प्लांट स्फैगनम. अभी तो दूसरे चीजें आगे रिप्लेस हो गए हैं, बट ट्रेडिशनली ओल्डर मेथड क्या था बोल तो, कोई भी चीज पैकिंग करना होता तो स्फैगनम यूज करते थे पैकेजिंग मटेरियल की तरह. And in case of bryophyte, very very important, there are two parts in the plant body. One is gametophyte, one is sporophyte. जो नीचे पार्ट है वो गैमेटोफाइट है और ऊपर का पार्ट जो है स्पोरोफाइट है. सो हु इज डोमिनेंट, हु इज प्रिपेयरिंग फूड इन ब्रियोफाइट? इन ब्रियोफाइट गैमेटोफाइट प्रिपेयर फूड. ये जो गैमेटोफाइट है ये फूड बनाएगा, फोटोसिंथेटिक है. लिख लीजिए गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक. गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेटिक. स्पोरोफाइट डिपेंड है, डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट. यस सर. उतनी औकात नहीं है हमारे पास. अगर उतना बुरा लगा तो मैं कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. इंफॉर्मेशन आप पूरा लेना ना. देखो मैं एक बात बोलता हूँ, नीचे अंजर सर के पास भी बुक है, ये पेज नोट कर लीजिए आप. पेज नंबर 12. और 13 इसमें से 5 क्वेश्चन निकाल दो. आंसर की ये बुक में रहती, देखो. लेकिन इसकी आंसर की नहीं मिलेगी आपको. ये इसकी आंसर की यहीं मिल जाती, इसकी आंसर की नहीं मिलेगी. फोटो लेना है तो ले लो. अंजर सर के पास है क्रैश कोर्स, है तो फोटो ले लो. नहीं पढ़ाना है क्वेश्चंस. हाँ मैं व्हाट्सअप भी कर दे रहा हूँ तुम्हारे, अगर बुक नहीं मिली तो इन केस. टिक भी कर दिए, टिक करे सर दुकान सर. ओके. Okay, so capsule contain spores. At the time of dehiscence, capsule breakdown and releases spores. कैप्सूल ब्रेक होके स्पोर्स रिलीज होंगे एंड स्पोर्स से न्यू प्लांट बनेगा. ठीक है. हु इज प्रिपेयरिंग फूड? गैमेटोफाइट इज preparing food. Sporophyte is just dependent on gametophyte. Now one more thing, gametophyte is having two types of sex organ. Plants के अंदर भी गैमेटोफाइट में दो टाइप के सेक्स ऑर्गन हैं. एक होता है एंथ्रीडियम और एक होता है आर्कीगोनियम. तो याद रखिए एंथ्रीडियम क्या है ना, मेल सेक्स ऑर्गन है ये. एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. Antheridium is male sex organ, Archegonium is female sex organ.
एंथ्रीडियम से बनेंगे बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट, बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट। बाइफ्लैजेलेट मतलब टू फ्लैजेला होंगे इनके पास, बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट। आर्कीगोनियम में रहेगा एग, आर्कीगोनियम में रहेगा एग। नाउ दिस बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट एंड एग in presence of water, fertilization occur forming zygote. Fertilization takes place in water forming zygote. तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। सो देयरफॉर वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, एंड यू नो स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और स्पोर से बनेगा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से गैमेटोफाइट बनेगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रियोफाइट। ब्रियोफाइट प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? ब्रियोफाइट में जो प्लांट है गैमेटोफाइट, उसके अंदर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन रहेंगे, मेल और फीमेल। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोले हम? एंथ्रीडियम बोले हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? आर्कीगोनियम बोल रहे हैं। एंथ्रीडियम जो प्लांट्स में मेल गैमेट है, जैसे एनिमल्स में स्पर्म है, ऐसे प्लांट में बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट और एग दोनों मिलने के बाद जाइगोट बनेगा प्लांट में, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोनीमा? देखो जाइगोट क्या होता है जरा बोलिए? डिप्लॉयड होता है, सबको मालूम है, जाइगोट इज डिप्लॉयड। एग क्या होता है? हैप्लॉयड। मेल गैमेट क्या होता है? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज इंडिकेटेड बाय एन एंड एन। दोनों फ्यूज होने के बाद 2n बना जाइगोट। दैट जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो 2n, स्पोरोफाइट 2n, और स्पोर क्या बन जाते हैं? यन। स्पोर्स क्या बन जाते हैं? यन। एंड स्पोर्स आर फॉर्म बाय meiosis. Spores are formed by meiosis. स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे मियोसिस से, और ये स्पोर्स डेवलप होंगे प्रोटोनीमा में। प्रोटोनीमा मींस हैप्लॉइड। व्हाट इज प्रोटोनीमा? हैप्लॉइड filamentous structure, filamentous structure in mosses. Mosses क्या है? Mosses is another name of bryophyte, you can remember. Mosses bryophyte को ही बोल रहे हैं, Mosses bryophyte plant को बोलेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रियोफाइट? ब्रियोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम रेस्पेक्टिवली। मेल को क्या बोल रहे हैं? एंथ्रीडियम, फीमेल को आर्कीगोनियम। What type of male gametes? Multiflagellated और biflagellated? बाइफ्लैजेलेटेड मतलब एक से दो फ्लैजेला होंगे, 2 फ्लैजेला होंगे, बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट है। नेक्स्ट, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने मेथड से हो सकता है? प्लांट्स में रिप्रोडक्शन 3 मेथड से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. Say for example Phaeophyce. What is Phaeophyce? ब्राउन अलगे 3 मेथड से रिप्रोडक्शन कर रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. Vegetative reproduction occur by means of
फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन क्या है? मतलब पेरेंट बॉडी ब्रेकडाउन. पेरेंट बॉडी ब्रेकडाउन, जैसे हम रोज प्लांट में स्टेम अगर कट करके लगा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट. इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन. asexual reproduction occur by means of zoospores. Zoospores. Sexual reproduction occur by means of gametes having two unequal laterally attached flagella. Two unequal laterally attached flagella. फ्लैजेला मतलब ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है. टू अनइक्वली साइज में अनइक्वल रहना चाहिए, एक लॉन्ग रहना चाहिए, एक शॉर्ट रहना चाहिए, लैटरल साइड्स में रहना चाहिए, नॉट एट द टिप. सो दिस इज अबाउट ब्राउन अलगे. ब्राउन अलगे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा है. फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है? पेरेंट बॉडी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बन रहा है? पाउडर लाइक, पाउडरी, पाउडरी जूस्पोर है, पाउडरी जूस्पोर है. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगे. जैसे ये एक अलगे है, देखिए. सो अगर टू फ्लैजेला है और अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, इफ an algae is having cup shape chloroplast inside, cup shape chloroplast having a central main body that is pyrenoid. Pyrenoid help in storage of protein and starch. प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं ये pyrenoids. Help in storage of protein and starch. This is the diagram of Chlamydomonas. Chlamydomonas is unicellular algae having cup-shaped chloroplast. cup-shaped chloroplast है. Next, what is the tallest plant of the world? टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? सेक्विया. सेक्विया जो है सबसे टॉल प्लांट होता है. ओके. और अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकैलिप्टस. यूकैलिप्टस नीलगिरी के झाड़ होते हैं, यूकैलिप्टस सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है. यस. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? ओल्फिया बोल के प्लांट है. ओल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. अगर क्वेश्चन है टॉलेस्ट प्लांट तो डेफिनेटली यू शुड आंसर सेक्विया, टॉलेस्ट प्लांट. और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अगर क्वेश्चन है यूकैलिप्टस. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है तो ओल्फिया. नेक्स्ट,
What are corolloid roots? Corolloid roots. Corolloid roots क्या हैं? Roots found in cycas. साइकास बोल के एक प्लांट है, उसके पास जो रूट होते हैं उसको बोलते हैं हम कोरोलॉइड रूट्स. व्हाट इज मीन बाय कोरोलॉइड रूट? दे हैव स्पेशल कैरेक्टर. रूट्स हैविंग symbiotic association with blue green algae. Symbiotic association with blue green algae. साइकास के जो रूट हैं, साइकास प्लांट कुछ ऐसे दिखता है कोकोनट ट्री की तरह, बट इट इज नॉट कोकोनट ट्री. स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट है ये, और इसके जो रूट होते हैं कोरोलॉइड होते हैं. कोरोलॉइड का मतलब है उनके रूट्स में ब्लू ग्रीन algae रहते हैं, एंड दोज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन. कोरोलॉइड रूट आर हेल्पिंग फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट, what is mycorrhiza? Very important definition is going to be mycorrhiza. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रहा है. माइकोरहिजा क्या है? ये फंगस प्लस रूट एसोसिएशन. When fungus and root both are present together, we call it mycorrhiza. And mycorrhiza present in पाइनस प्लांट. पाइनस प्लांट में मिलेगा आपको माइकोरहिजा, और इसका फंक्शन है खास अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस. इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस. फास्फोरस को अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है. माइकोरहिजा इज प्रेजेंट इन पाइनस ट्री, हेल्पिंग फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस. यू नो क्यारा. क्यारा क्या है? ये क्यारा इज ग्रीन algae. क्यारा इज ग्रीन algae. In case of क्यारा, there are two types of sex organs in क्यारा. Same क्यारा plant. क्यारा is homothallic. Homothallic, or you can say it monoecious. मोनोशियस का मतलब है सिंगल प्लांट हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल. तो क्यारा में क्या होता है ना, अपर इज ऊगोनियम. अपर इज ऊगोनियम. व्हाट इज ऊगोनियम? फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन है अपर ऊगोनियम. एंड द लोअर is antheridium. Antheridium का मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन antheridium. Oogonium is having upper oogonium. Cara is having upper oogonium, lower antheridium upon same plant. सेम प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन है, अपर ओगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, क्यारा में. याद रखिए. चलो नेक्स्ट आगे. आफ्टर दिस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमेट्स non-flagellated condition. Isogamous non-flagellated कंडीशन. आइसोगैमस का मतलब है दोनों मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिखेंगे. मेल गैमेट एमजी, फीमेल गैमेट एफजी, दोनों भी सेम है,
और दोनों में फ्लैजिला नहीं है, नॉन नॉन फ्लैजिला. So where do you find this condition where both male and female gametes are isogamous and non-flagellated? This condition seen in example स्पाइरोगेरा में देख सकते हैं आप. स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा में होता है इस टाइप का कंडीशन. नॉन मोटाइल होते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, बोथ आर नॉन मोटाइल. What is mean by heterospory? Heterospory. Heterospory means formation of two types of spores. Two types of spores. Here the smaller spores जो होते हैं, smaller spores, they are known as microspores. Larger जो spore होते हैं, they are known as megaspores. If a single plant is producing two types of spores, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं सेम प्लांट से, तो इस कंडीशन को हेटेरोस्पोरी बोलेंगे. एंड हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन, कहां पे मिलेगी आपको हेटेरोस्पोरी? फाउंड इन सेलाजिनेला. सेलाजिनेला बोल के प्लांट है, सैल्विनिया बोल के एक प्लांट है. सेलाजिनेला, सैल्विनिया, these are having heterospory condition. नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. Which among the following is not prokaryote? Identify not a prokaryote. Out of the four options, which of the following is not a prokaryote? Four options are given. Identify which is not a prokaryote. Nostoc, Mycobacterium, Nostoc, Mycobacterium, Saccharomyces, Oscillatoria. बताइए. कल की क्लास में हम सुने हैं किंगडम मोनेरा में, नॉस्टॉक किंगडम मोनेरा में आता है. किंगडम मोनेरा में जो मोनेरा में आते हैं ना, वो सारे प्रोकैरियोट. Mycobacterium is a bacteria. It is also same kingdom monera. Saccharomyces क्या है? Yeast है, and yeast is a fungus, and fungus is not prokaryote. Fungus is not prokaryote. तो आंसर क्या जाएगा हमारा? Saccharomyces. क्यों जा रहा है Saccharomyces? Because yeast is a fungus and fungus are not prokaryotes. Fungus are not prokaryotes. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई. अगर फंगाई में अगर हम देखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी है, फंगाई reproduces by 3 steps in sexual reproduction. One is plasmogamy, second one is karyogamy, third one is meiosis. In case of fungi, sexual reproduction occur in 3 steps: plasmogamy, karyogamy, meiosis. प्लाज्मोगेमी में क्या होने वाला है? प्लाज्मोगेमी में एक फंगस होगा प्लस, एक फंगस होगा माइनस. एक फंगस प्लस, एक फंगस माइनस. मेल और फीमेल है. फंगाई में मेल फीमेल को हम प्लस माइनस से बता रहे हैं.
तो फर्स्ट क्या होगा, यहां पे दोनों फंगस के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे. साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द फंगाई फ्यूजेस. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द फंगाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी. दोनों फंगस के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं. और एक एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए अब? एक एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हो गए ना. दिस कंडीशन, व्हाट डू यू कॉल दिस कंडीशन? Dikaryophase condition. If one cell having two nucleus, what do you call? Dikaryophase. Dikaryophase के बाद क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे. दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा ये प्रोसेस को? कैरियोगैमी. व्हाट इज कैरियोगैमी? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, अब दोनों भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी. कैरियोगैमी के बाद क्या होने वाला है? मियोसिस. और मियोसिस में क्या होगा? यहां पे बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे. स्पोर्स, सो मेनी स्पोर्स. हर स्पोर से एक नया फंगस बनेगा. सो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई? तो यू शुड रिमेंबर, फंगाई में 3 स्टेप्स हैं: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस. इन प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म ऑफ द 2 फंगाई फ्यूजेस. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं. एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस. चलिए मुझे बताइए, वायरस, वायरॉइड, प्रायन में क्या डिफरेंस है? वायरस, वायरॉइड, प्रायन. वायरस, वायरस क्या होता है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है. न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. वायरस क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन. नाम समझ के पढ़ो. न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है. न्यूक्लिक एसिड, और इसके ऊपर प्रोटीन का कवर होता है. वायरस का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस. हर एक वायरस में आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए और आरएनए. न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या तो आरएनए, और ऊपर प्रोटीन कवर. प्रोटीन कवर, ये वायरस. वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड आर आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स. आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स. आरएनए से बने सो पार्टिकल होते हैं. दे आर नॉट हैविंग प्रोटीन. प्रोटीन नहीं है इनमें. वायरॉइड मतलब आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल. और प्रायन क्या है? प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल. प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल आर प्रायन्स. प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल आर प्रायन. जब एक वायरस अटैक करता है होस्ट सेल को, वायरसेस व्हेन दे अटैक होस्ट सेल, व्हाट दे इंजेक्ट? When viruses attack the host cell, they inject their genetic material or protein. Yes sir. कौन सा? ठीक है, अब हो गया. और when viruses inject the host cell, when viruses attack the host cell, जब कोई वायरस होस्ट सेल को अटैक करता है तो क्या इंजेक्ट करता है वो? अपना डीएनए और आरएनए इंजेक्ट करता है. प्रोटीन इंजेक्ट नहीं करता वायरस.
वायरस का जो प्रोटेक्शन है प्रोटीन कवर है, एंड व्हेन वायरसेस अटैक द सेल, किसी के भी सेल को अटैक कर रहा है, देन इट अटैक इंजेक्ट आइदर डीएनए और आरएनए, बट नॉट इंजेक्ट protein is not infectious. Protein is not infectious in viruses. वायरसेस में प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं है. प्रोटीन इज नॉट इन्फेक्शियस इन वायरसेस. ठीक है. इन्फेक्शन किससे हो रहा है वायरस में? डीएनए और आरएनए. और एक बात, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली पैरासाइट. वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट सेल. अगर वायरस बॉडी के बाहर है किसी के, सर्वाइव नहीं होगा वायरस. वायरस सर्वाइव ओनली विद इन द होस्ट सेल. दैट्स व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट. अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, कॉमन कोल्ड वायरस है या कौन सा भी वायरस हो, तो वो वायरस जो है ना, स्नीजिंग कॉफिंग के थ्रू दूसरे पर्सन में जाएगा और वहां पे सरवाइव करेगा. इफ वायरस आर रिलीज इनटू द एयर, कुछ देर के बाद वायरस मर जाएंगे, क्योंकि वायरस क्या है? ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट हैं. They can survive only within the host cell. They cannot survive outside the host cell. Okay. So from today's class आप क्या करना है? देखिए, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चंस करिए. प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वेश्चंस लगाइए. क्लास असाइनमेंट क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. In tomorrow's class we will continue the remaining topic. Okay. Thank you.